If you follow me on Instagram, you must have surely seen me hitting mitts or shooting some elbows and knees in a Muay Thai class. Well, that's because I've been training at a UFC gym for the past 6 months. For those who don't know what UFC is, it stands for Ultimate Fighting Championship, the biggest MMA franchise or brand in the world. In the 4th grade, I was introduced to the sport of karate. It fascinated me how you could put on a gi and it changed your whole aura and personality. The technicalities, commitment and consistent required to master this was like any other sport. From there I got fascinated about MMA and other combat sports, and since then I have been passionately training in some form of MMA or the other. During the week I take kickboxing and Muay Thai classes, and I like to end my Sundays with some BJJ drills. MMA has brought about a change in the way I think, act and believe. It helped me stay disciplined and committed during some hassling times, and therefore I dedicate today's episode to the hobby, passion and lifestyle of MMA. Truly, there is nothing in this world I would take instead of a good 2 hours of MMA training, and I say this with complete honesty, nothing. Today I have someone super special on the show with me, someone who I believe has experienced every aspect of MMA and in the most authentic form ever, if I may say. Pawan Prasad Semwal, popularly known as the Wind of India. Some of his credentials are NS certified boxing coach, striking coach at UFC, Bandra, boxing and conditioning coach for the Quick Response Police team, and also a pro MMA fighter. Apart from all these qualifications, he is also my MMA coach, and that's why I have him here today. And I want him to express and talk about the future of MMA in India, more about the mental mindset required by fighters today, and also what is the route someone should take in order to ultimately reach this fighting championship that is so world renowned. So let's see what he's got to say. So coach, welcome to the podcast. The first question that I have for you today is about your history. So how did you develop the passion for MMA, and every day continuously train karna and to put in all that hard work, wo kaise hota hai? What's the drive behind that? Thank you for inviting me, Hamza. That is a tough question, but still अगर उसको explain करना है, देखो क्या होता है पता है, first thing is you need to have a goal, you need to have a passion towards it. Like ऐसे कोई भी सुबह 4 बजे उठ के 1.5 hours jogging, then उसके बाद में skipping, अपना cardio, then उसके बाद में afternoon में again 12 o'clock को अपना एक technical session, then evening को again अपना strength and conditioning session नहीं करेगा. He used to have, first thing is you need to have a focus, goal, then only you can that thing that derive you to get up early, to do this sacrifice and all. And that's it. Like the follow-up question to that is, जो आपका specific जो passion है MMA का, where did you get that? Like first time where did you see a MMA fight या फिर boxing fight जिसका you know much more about? Whoa. See, I started MMA at the age of 7. Okay. Now I am 27, so it's like 2 decades of experience in this. So I started with kickboxing. So एक बार क्या हुआ था, मतलब I was with my friend watching movies. तभी के टाइम पे तभी के टाइम पे we used to have that color TV and all. So it was not my place, it was my friend place. I was watching a movie of Jackie Chan. If you remember that drunken master and all, वो दारू पी के ट्रेनिंग करते हैं and all. And वो कुछ 4-5 लोगों को मारता है, and वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा. मेरे यहाँ पे भी कुछ लोग रहते, लड़के लोग. आई एम टोटली अ लोकल गाय, स्ट्रीट बोलते ना, गली का लड़का, प्रॉपर गली बॉय. सो वहाँ पे बुलीज चलते हैं एंड ऑल. सो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे को कुछ ना तो कुछ करने का इनको मारने के लिए. So then I started watching Jackie Chan and all. Then slowly and gradually I started watching some. I used to ask from my friends like, just मुझे एक वीडियो दिखा दो ना माइक टाइसन का, या and all. माइक टाइसन हुआ तभी के टाइम पे, माइक टाइसन और मोहम्मद अली था, ठीक है. तो तभी के टाइम पे ऐसा लगता था कि यार अगर कुछ नहीं मिला तो WWF दिखा दो. सो WWF देख लो यार, WWF दिखा दो. तो वहाँ से देख के
देन घर पे आके अपना वो प्रॉपर पिलो विलो सेट करके देन वहाँ पे मूव्स करने ट्राई कर, देन दैट डिराइव मी टू into MMA and all. And I started with kickboxing, and then later I switched on to karate. Then later on I switched again. I came back to kickboxing, and then finally I spent like 8 years in boxing. I'm also a national level player in boxing, right. And also an NS boxing coach. And then after that मेरे को प्रो बॉक्सिंग करने का था, क्योंकि मुझे बहुत माइक टाइसन जैसा वो था कि मुझे प्रो बॉक्सिंग करना है, मुझे नॉक मारना है, मुझे शो बूटिंग करना है, मुझे ब्रांड बनना है, स्पेसिफिकली ब्रांड बनना है। सो वो मैं प्रो बॉक्सिंग के लिए भी गया। एंड देन जब मैं गया था 2014 में, मुझको उन्होंने बोला था कि यार तुमको $500 भरना पड़ेगा सिर्फ रजिस्टर के लिए। एंड यार मेरे ऐसा गली बॉय था, वो $500 मतलब यार पूछ मत। तभी के इट वॉज लाइक सम अराउंड if I'm not wrong 20,000-30,000 2014 I'm talking about. So मैंने बोला यार अभी क्या करना है, अभी हमको तो देखना पड़ेगा लाइक फुकट का गेम, like where no money, we don't spend much money and like we can get fight experience and all. And then suddenly at that time I still remember there was an SFL contender leagues and all. So then मैंने देखा and then I like चलो MMA में try करते हैं, and then I from boxing I switched on to MMA. और ये फर्स्ट सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन ये है कि द विंड ऑफ इंडिया नेम हाउ डिड यू गेट, उसका क्या स्टोरी है, उसको शॉर्ट में बता दो। एक्चुअली ये हुआ है कि मेरा नाम पवन है, लाइक अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर पवन का मतलब विंड है। सो मुझे ऐसा देखो बचपन से मेरा एक ड्रीम है, बाकियों का पता नहीं, बट मैं इस फील्ड में ना पैसा कमाने आया और ब्रांड बनने आया। लाइक बाकी लोग फाइट करने को खेलते हैं, या कोई बोलता है कि आई प्ले जस्ट फॉर फाइट, आई प्ले फॉर पैशन एंड ऑल। डूड आई डोंट प्ले फॉर पैशन एंड ऑल, आई एम हियर टू बी एन ब्रांड। मेरे को ब्रांड बनना है। सो मैं वो सोचा था कि अगर मैं ब्रांड बनूंगा तो मैं नाम क्या रखूँगा। सो मैं वही सोचा एंड देन सडनली मुझे ना मेरे फ्रेंड्स लोग हवा भी बोलते, हवा का झोंका है ना, मेरी फैमिली भी बोलती अरे हवा का झोंका। देन मुझे ये लगा कि यार वाई डोंट आई पुट द सिर्फ विंड रखता हूँ, मेरा नाम विंड रखता हूँ। देन मेरा एक फ्रेंड है, मेरा क्लोज फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है। देन उसने बोला यार तू विंड मत रख, एक काम कर, तू द विंड ऑफ इंडिया रख, द विंड ऑफ इंडिया। सो देन वहाँ से मैंने बोला हाँ ये एक ब्रांड भी हो सकता है। देन वहाँ से मैंने द विंड ऑफ इंडिया रखा। So coach, the second segment is about mixed martial arts. The listeners want to know this कि mixed martial arts में ना क्या क्या अलग अलग स्पोर्ट्स आ जाते हैं, एंड व्हाट ऑल डिफरेंट लाइक फाइटिंग, कॉम्बैट जिसको भी बोलते हैं, व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड। एंड सेकेंडली इज इफ देर इज़ अ फाइटर फॉर एग्जाम्पल अ नेशनल लेवल बॉक्सर एंड ही वांट्स टू गो एंड जॉइन दिस बिग UFC फ्रेंचाइज, आई नो द प्रोसेस इज़ वेरी लॉन्ग, लेकिन अगर किसी को करना है देन व्हाट सिस्टम शुड ही फॉलो, क्या प्रोसेस फॉलो होना चाहिए? MMA में बेसिकली सब मार्शल आर्ट्स आते हैं, जितने भी मार्शल आर्ट्स आते हैं, लाइक वे यू डील विथ फिजिकल काइंड ऑफ थिंग, फिजिकल एज इट इज बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, कराटे, ताइक्वांडो, BJJ, रेसलिंग, सांबो, और अभी एक वो नया आया है जो बहुत पॉपुलर हो रहा है इंडिया में, वुशु सांडा भी जिसे हम बोलते हैं। लाइक एनी काइंड ऑफ मार्शल आर्ट्स सब लोग आते हैं। हाँ, मुआथाई तो बहुत मेन है, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट इट, इट्स मेरा फेवरेट है मुआथाई, आई लव नी एंड पुश। एंड लोथाई भी आता है, लोथाई हुआ, बेयर नकल, ये सब आता है। लाइक एनी ऑफ दिस बैकग्राउंड कैन गो फॉर MMA एंड ऑल, बट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सबसे चाहिए वो है पेशेंस, फोकस, ठीक है, पेशेंस, फोकस, और सबसे इम्पोर्टेंट डेडिकेशन। अगर तुम्हारे पास ये चीज़ है, ये 3 चीज़ है, आई सी दैट आज के टाइम पे एमेचर लोगों के पास में ये तीनों चीज़ नहीं है। वो लोग लाइक अभी MMA किया, लाइक वो लोग बॉक्सिंग करते हैं, वो लोग को लगता है कि मुझे अगर MMA में जाना है तो मेरे को सिर्फ बॉक्सिंग लगेगा या मैं स्ट्राइकिंग के इससे जाएगा। देर आर 3 थिंग्स इन MMA। फर्स्ट थिंग इज स्ट्राइकिंग, जिसे हम बॉक्सिंग, 3 मतलब कैटेगरीज है जो MMA में बहुत ज़रूरी है। तुम बॉक्सिंग के इससे नहीं आ सकते, बेसिस पे नहीं आ सकते, ठीक है। उसका लाइव एग्जांपल था केली हैरिसन, बॉक्सर थी जो अभी आई थिंक सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बेलाटोर में खेली, एंड उसका लॉस भी हुआ अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन। और दूसरा है
लाइक रेसलिंग एंड ऑल, जो मिड रेंज होता है जहाँ से हम लोग मतलब स्टैंडिंग से खेल के ग्राउंड पे लेके आते हैं, ठीक है। और रेसलिंग हुआ, देन जूडो हुआ, इसका भी लाइव एग्जांपल है बेन एस्करेन, वो सिर्फ रेसलिंग के इससे आया। यू इवन हैव खबीब, बट लोगों को लगता है खबीब के पास में सिर्फ रेसलिंग है, लोग भूल जाते हैं कि खबीब वॉज एन सांबो प्लेयर। एंड अगर लोगों को जिनको पता नहीं है सांबो क्या है, सांबो इज अबाउट टेकिंग अपोनेंट डाउन एंड स्मैशिंग हिम, वो भी है, तो लोग भूल जाते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फेडोर एमिलियानको, जो सांबो प्लेयर है। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं बीजेजे, ग्राउंड गेम, प्रॉपर ग्राउंड गेम, ग्राउंड कंट्रोल, उसमें लॉक्स भी आता है, सबमिशंस भी आते हैं, ठीक है। सो ये तीनों चीज़ चाहिए। अगर कोई एक बॉक्सर है या किक बॉक्सर है या बीजेजे गाय है या रेसलर है या सांबो प्लेयर है, मैं उन सब एमेचर्स को एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर गेटिंग इनटू एमएमए, मेक श्योर यू हैव द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। अभी एक इंडिया की मैं बात करता हूँ, लाइव एग्जांपल है हमारी ये रितु फोगाट, वो उसका प्योर रेसलिंग है एंड ट्रस्ट मी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट, इतनी स्ट्रॉन्ग फाइटर है, मुझे लगता है कि वो फ्यूचर है इंडिया के एमएमए का। एंड मार्क माई वर्ड, यू विल सी her डेफिनेटली फाइटिंग इन यूएफसी एंड लिफ्टिंग द टाइटल बेल्ट ऑल्सो। बट वो अभी लाइक विद इन 2 या 3 months में यू विल डेफिनेटली सी her स्मैशिंग फेयरटेक्स अगेन। सो बात ये है कि उसका भी एमएमए का गेम था, ठीक, उसका रेसलिंग का गेम था। एंड वो किसके अगेंस्ट गई? स्टैम फेयरटेक्स के अगेंस्ट, जो वर्ल्ड रेनाउंड स्ट्राइकर है। बट रितु फोगाट का कहाँ मिस्टेक हुआ कि उसने अपने सबमिशंस पे वर्क नहीं किया। एंड वो बहुत फास्ट थी, मतलब मुझे बहुत सबमिशन जल्दी ख़त्म करना है। एंड अगर आपने देखा रहेगा कि उसने जैसे ही टेक डाउन के लिए अटेम्प्ट किया और अपना नेक, मतलब अगर तुमने देखा रहेगा कि जब रितु फोगाट टेक डाउन के लिए अटेम्प्ट के लिए गई और फेयरटेक्स के लिए, तो उसने प्रॉपरली, फेयरटेक्स ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ किया, प्रॉपरली उसको उसका नेक होल्ड करके प्रॉपरली रखा और वो केज पे थी। एंड जब उसको रितु फोगाट ने नीचे रखा या स्मैश किया, तब उसने अपना सबमिशन के लिए गया। सो रितु फोगाट बीजेजे के लिए रेडी नहीं थी। रितु फोगाट को पता था कि मैं स्ट्राइकिंग करूँगी और वो भी स्ट्राइकिंग करेगी, बट मैं उसको ग्राउंड पे लेके आएगी। तो ये हुआ, ठीक है, ये सब फाइट से देखने को मिलता है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर जो मतलब अपना गेम चेंज कर दिया सब, मेरे से मैं खुद एक स्ट्राइकर था, अभी मैं एमएमए करता हूँ, ठीक है, अभी मैं अपने ग्राउंड गेम पे वर्क करना था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कैसा होता है, कंसिस्टेंसी रखो यार। मतलब आप ट्रेनिंग करते हो तो ऐसा नहीं कि बीजेजे बहुत बोरिंग है, बट ट्रस्ट मी, बोरिंग से डबल इम्पॉर्टेंट है वो एमएमए में। अगर आपको एमएमए करना है, जैसे गी हुआ, नोगी हुआ, बीजेजे गी, बीजेजे नोगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको ट्रेनिंग करते रहो, लाइक कीप ऑन डूइंग इट। लाइक आज तुमने कुछ सीखा तो ऐसा नहीं कि कल जाके कुछ नया सीख रहे हो, नो, ट्राई, लाइक तुम कुछ भी मूव सीख रहे हो ना, उसको एटलीस्ट 7 days करो। थोड़ा बोरिंग होगा, बट ट्रस्ट मी, जब वो तुम्हारी मसल मेमोरी में आएगा ना, तुम्हारा जब वो तुम सबमिशन अटेम्प्ट करोगे ना, वो कोई डिफेंस ही नहीं कर पाएगा। सो ये बोलना चाहता हूँ कि ट्राई टू डू इट, ट्राई टू डू इट। एंड लास्ट और फाइनल थिंग इज फॉर like 2 or 3 months, when you, if like you are from kickboxing or you're from boxing, you're from Muay Thai, you're from Sambo, you're from wrestling or you're from this BJJ, अगर तुम MMA में आ रहे हो तो अदर मार्शल आर्ट्स को भी थोड़ा टाइम दो। लाइक ऐसा नहीं कि लाइक तुम्हारा रेसलिंग बैकग्राउंड है और तुम MMA में आए, तुमने थोड़ा बॉक्सिंग कर लिया एंड देन तुम MMA फाइट के लिए जा रहे हो, नहीं, थोड़ा सा टाइम दो। लाइक गिव 2-3 months और 4-5, एटलीस्ट 4 months, एंड देन थोड़ा स्पायरिंग करो, थोड़ा अपना लेवल देखो। एंड मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वॉच फाइट्स ओनली व्हेन यू आर एन एमेच्योर, ओनली वॉच एमेच्योर फाइट। अभी लाइक तुम्हारे दिमाग में होगा कि यार सर MMA फाइट्स क्यों, मतलब एमेच्योर फाइट्स क्यों, लाइक MMA ही तो है। देखो क्या होता है पता है, बहुत सारे एमेच्योर लोग गलती कर देते हैं। मैंने अपने बहुत लाइक तो इसमें देखा हूँ, एक्सपीरियंस में देखा हूँ। मैंने 2-3 लीग में मैं रेफ भी रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने खुद डिस्क्वालीफाई किया हूँ। क्या होता है पता है, कौन से लीग में ना, एमेच्योर लीग में सबमिशन अलाउड नहीं है। कौन से थे, जैसे कि लेग लॉक्स में अर्किलिस लॉक के अलावा और कोई लॉक्स नहीं है, तो कोई हिल लुक के लिए ट्राई कर देते हैं, तो वहाँ पे हम उसको वार्निंग नहीं देते, वहाँ पे सीधा डिस्क्वालीफाई कर देते।
ठीक है। तो कोई कोई जैसा आप प्रो देखोगे ना, वहाँ पे नी अलाउड है, एल्बो अलाउड है, फेस पे अलाउड है, फिर अर्किलिस लॉक नहीं, तुम वहाँ पे कोई भी मार सकते हो, कोई भी लेग लॉक मार सकते हो, ट्विस्टर मार सकते हो, बट जब एमेच्योर खेलते हो ये सब अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो यही बात बोलना चाहता हूँ। So the last question that we have is जो लोग हैं एस्पायरिंग, जो जाना चाहते हैं, who wants to participate in UFC, उनका मेंटल माइंडसेट क्या होना चाहिए? बिकॉज बॉडी को तो सब ट्रेन कर सकते हैं, बट योर मेंटल माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू कैन पुश योर सेल्फ एवरी डे। तो व्हाट डू यू थिंक आर द क्वालिटीज़, और मेंटल माइंडसेट कैसा होना चाहिए आदमी का टू बी अहेड इन दिस स्पोर्ट और टू गो अहेड इन दिस स्पोर्ट? देखो, लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग टू ऑल दी एमेच्योर फाइटर्स हु आर लिसनिंग दिस, लेट मी टेल यू वन थिंग, इंडिया में 95% MMA क्लास है ना फेक है। फेक मतलब कैसा है पता है? वो जो कोच है वो या तो किक बॉक्सिंग बैकग्राउंड से या तो कराटे बैकग्राउंड से, और वो वहाँ पे MMA सिखा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग, पहला तुम देखो कि तुम्हारा MMA ट्रेनर उतना लेजिट है या नहीं है। अभी मैंने बहुत सारे देखा हो, यूट्यूब देख के वो लोग सिखाते हैं, ठीक है। और सेकेंड थिंग, वो लोग क्या करते हैं पता है? अभी क्या बोलूँ, अभी नाम तो नहीं लेना चाहता उनका स्पेसिफिक, बट उनको पता रहेगा कि जब मैं बातें कर रहा हूँ कि ये फेक क्लासेस, उनको बराबर पॉइंट आउट हो गया रहेगा कि मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। अभी बात क्या आता है पता है? वो फेक क्लासेस है ना, बच्चे लोग का एक ड्रीम लेके आता है कि यार मुझे कॉर्नर बनना है, मुझे खबीब बनना है, मुझे पीटर यान बनना है, मुझे GSP बनना है, मुझे फेडोर बनना है। बट ये जो फेक क्लासेस कर रहे हैं ना, इनके पास में कोई टेक्निक नहीं होता है, ये अपने मार्शल आर्ट्स के हिसाब से सिखा दे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर तुमको कुछ करना है, लाइक फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक इज फाइंड अ लेजिट MMA जिम, ओके। थोड़ा रिसर्च करो, ट्राई टू फाइंड कि ये कोच सही है या नहीं है, इसका एक्सपीरियंस क्या है, इसने कोई फाइट खेला है या नहीं खेला है। आजकल के मैं क्या देख रहा हूँ पता है? वो बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग या मुआथाई का ट्रेनर है एंड वो MMA सिखा रहा है, उसने खुद कभी BJJ कॉम्पिटिशन नहीं की है, ठीक है। अभी हमारे मुंबई में मैंने देखा बहुत सारे पर्पल बेल्ट होल्डर है, ठीक है। उन्होंने खुद कभी पर्पल बेल्ट है, ब्लू बेल्ट है, उन्होंने खुद कभी कोई MMA बोल रहा हूँ, उन्होंने खुद कभी कोई BJJ मैचेस नहीं खेला है। थाईलैंड वाईलैंड गए, ठीक है, कोचेस के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड किया, उनको डिनर में लेके गए एंड देन उस बेसिस में किया। सो यार ये कैसा पता, ये कहीं ना कहीं वो जो फाइटर है जिसको इसमें करियर बनाना है या प्रोफेशन बनाना है, उसको ये होता है, ही कांट हेल्प इट, ओके। फर्स्ट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब यू आर टॉकिंग अबाउट मेंटल थिंग, इज ट्राई टू डू मोर स्पायरिंग, ओके। मोर स्पायरिंग, सी क्या होता है पता है? जब मैं 10th में होता हूँ ना, तो मैं 10th की पढ़ाई करता हूँ, मैं 12th की पढ़ाई नहीं करता हूँ, या मैं 11th की पढ़ाई नहीं करता हूँ। सो सेम होता है, जो एमेच्योर होता है ना, अगर वो एमेच्योर फाइट खेल रहा है ना, तो उसको प्रो फाइट देखने का ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ एमेच्योर फाइट से देखने का। क्योंकि अगर वो प्रो फाइट देखेगा ना, तो वो शो बूटिंग आता है, लाइक वो फिर अभी लाइक चेस्ट पे फेस पे एल्बो अलाउड नहीं है, ठीक है, और फेस पे नी अलाउड नहीं है। पर एमेच्योर लोग लाइक वो देखते हैं, लाइक अगर सबने देखा रहेगा बेन एस्करेन और मास विडेल का, वो नी मारा था, तो मतलब एमेच्योर को लगता है कि मैं भी करूँ। वो इंटेंशन नहीं होता है, पर वो शो बूटिंग के टाइम पे ना ऑटोमेटिकली मसल मेमोरी से निकल जाता है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हर एक फाइटर को थोड़ा मेडिटेशन करो, ओके, घर में। व्हाट यू हैव टू डू, देयर आर 3 एक्सरसाइज दैट आई टेल एवरीवन। फर्स्ट थिंग इज मेडिटेशन करो, ओके, अपने ब्रीथ पे फोकस करो। सेकेंड थिंग इज घर पे एक छोटा सा डॉट बनाओ, एक पेंसिल के निब जितना डॉट बनाओ एंड उस पर फोकस करो। आपका आई ब्लिंक नहीं होना चाहिए, आई नो वो नहीं होता है, बट ट्राई एंड सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड थिंग, आई वॉन्ट यू ऑल टू डू शैडो स्पारिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये तभी होगा व्हेन यू आर इन द ऑक्टेगन में आओ या केज में आओ, इमेजिन करो तुम फाइट कर रहे हो, तुम्हारा आइडल को रखो, और लिटरली ये हेल्प होता है। हम लोग के बॉक्सिंग में ना, जब मैं बॉक्सिंग करता था, लाइक इवन यू डू मुआथाई, हम लोग को बोलते थे कि शैडो बॉक्सिंग करो। मैं बोला पागल लोग हो गए क्या पागल लोग है, इनको कोई सेंस है क्या? आदमी हवा में पंच मार रहा है, क्या होता है? बाद में मुझे पता चलता है कि क्या होता है, पता है, व्हाई डू यू डू शैडो स्पायरिंग और शैडो बॉक्सिंग? ये क्यों करना है बताएं? जो तुमने टेक्निक सीखा है ना, वो सबको यूज़ करना है, ठीक है, तो ही तो तुम्हारे मसल मेमोरी में आएगा। अभी लाइक मैंने कल सीखा
हरक्यूलिस लॉक सीखा या मैंने किमोरा सीखा या गिलिटिन सीखा, मैं डायरेक्ट थोड़ी फाइट के लिए फाइट में जाके यूज़ करूँगा, नहीं, मैं पहले वो अपने फ्रेंड्स में यूज़ करूँगा, ड्रिल्स में यूज़ करूँगा, स्पारिंग में यूज़ करूँगा, एक बार वो मेरे मसल मेमोरी में हो जाएगा तब मैं करूँगा। अभी लोगों को पता है कॉर्नर का, लोग देखते कि यार कॉर्नर है ना बैक स्टेप राइट मारता है, स्वेप बैक राइट बहुत अच्छा मारता है, ठीक है, पर लोग भूल जाते कि उसने वो ड्रिल कितने बार किया। लोग खबीब का भूल जाते, लोग बोलते हैं अरे खबीब ऐसा पकड़ के नीचे लेके आता है, पर लोग भूल जाते कि सबको पता है खबीब ग्राउंड पे लेके जाएगा, पर लोग फिर भी उसको कुछ नहीं कर पाते। तुमने भी फाइट देखा है कॉर्नर के साथ में, जस्टिन गेची के साथ में, वो खुद एक रेसलर था, उसको ग्राउंड पे लेके गया फिर भी नहीं कुछ कर पाया। वो उसको खुद भी पता था कि खबीब टेकडाउन मारेगा, और खबीब ने टेकडाउन मारा, खबीब ने प्रॉपर नीचे गया और खबीब ने प्रॉपर ट्रायंगल में फिनिश किया। और फिर उसके बाद सबसे जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेशेंस रहो यार, पेशेंस रहो, खुद में पेशेंस रहो। लाइक मैं कुछ कर रहा हूँ, अभी मैंने कुछ ट्रेनिंग किया, घर पे गया, मैं कोई दूसरा वीडियोस देखा और कल आगे कुछ दूसरा कर रहा हूँ। पेशेंस रखो, ड्रिल करते रहो और खुद पे भरोसा रखो, दैट्स इट। नहीं, एक जो एडिशन है उसमें पेशेंस इज करेक्ट, लेकिन मेंटल माइंडसेट आई थिंक जो मेजॉरिटी लोग जिसकी वजह से पूछते हैं ये स्पोर्ट में इज़ बिकॉज यू नो पहला फाइट भी अगर आपको कोई है मिक्स मार्शल आर्ट्स का, सबको एवरीवन स्केर्ड भाई आई डोंट ब्रेक माई नोज इन द फर्स्ट फाइट ओनली, ऐसा मेजर इंजरी नहीं चाहिए। वो मेंटल माइंडसेट की बात करो दैट यू नीड, वो ऑक्टेगॉन के अंदर एंटर करने से पहले जो आदमी का दिमाग कैसे होना चाहिए, यू नो दैट फियर कैसे निकाले। सी देयर इज़ नथिंग टू डू विथ फियर एंड ऑल यार, वो हम लोग में भी रहता है, वो सब में रहता है। ऐसा कोई फाइटर नहीं है ना जो रिंग में, चाहे वो खबीब होने दे, चाहे वो कॉर्नर होने दो, चाहे वो मोहम्मद अली होने दो, ठीक है, चाहे वो माइक टाइसन होने दो, चाहे वो ये होने दो क्या इसका फ्लॉयड मेवेदर तक होने दो, ठीक है, उसको मनी टीम बोलते हैं, उसको मनी मशीन बोलते हैं। सबको प्रेशर होता है, ठीक है, सबको ये होता है कि यार मैं क्या करूँ, मेरा नाक नहीं, मेरा नोज़ नहीं फूटना चाहिए, मेरा हाथ नहीं टूटना चाहिए, मेरा पैर नहीं जाना चाहिए एंड ऑल। अगर सी इफ़ यू हैव दैट माइंडसेट लाइक यू नो इफ़ आई वांट टू डू MMA एंड आई डोंट वांट टू ब्रेक माई बोन, सो वो सेंस नहीं बनते। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू कैन बी सी यू कैन देयर आर टू फाइटर, फर्स्ट इज कीबोर्ड फाइटर एंड सेकेंड वन इज प्रॉपर फाइटर। सो इफ़ यू आर लाइक यू नो यू हैव दैट माइंडसेट लाइक यू नो मेरे को नाक नहीं तोड़वाना चाहिए, मेरे को कोई सबमिशन नहीं लगना चाहिए, मेरे को एकदम प्रीटी बॉय बनने का, देन डूड दिस इज नॉट योर स्पोर्ट्स, यू कैन बी द कीबोर्ड फाइटर, गुड, यू नो कीबोर्ड में फाइट करने का एंड कीबोर्ड में सिखाने का कि नहीं इसको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए। लाइक सी एक सिंपल है यार, अगर तुम फुटबॉल भी खेलते हो, ठीक है, या तुम क्रिकेट भी खेलते हो, या तुम बॉक्सिंग भी करते हो, ऐसा कोई फाइटर नहीं जिसने आज तक एक पंच नहीं लिया, ठीक है। इवन तुम साइकिल भी चलाओगे तो तुम एक ना तो एक बार तो गिरोगे, बट सी वो तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए कि व्हेन यू जब तुमको पंच लगता है, ठीक है, वो क्यों लगा, अभी हम लोग उस पर क्या कर सकते हैं। इसके लिए मैं तुमको पहले ही बोला था, लाइक आई डोंट नो तुमने ध्यान से सुना कि नहीं, एमेचर्स आपको भी बोल रहा हूँ, आपने ध्यान से सुना कि नहीं, कि मैंने पहले बोला था स्पारिंग करो, पेशेंस रहो, राइट। और जितना तुम, मैंने आपको पता है मैंने लास्ट में स्पारिंग मैंने पेशेंस क्यों बोला, क्योंकि क्या होता है पता है, मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर तुमने तुम्हारे एग्जाम का प्रॉपर प्रिपरेशन करके गया, तुम डरोगे कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, नहीं डरोगे, यू आर रेडी टू प्रिपेयर, यू आर रेडी, राइट, यू आर रेडी टू गिव योर एग्जाम बिकॉज यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सेम अगर तुमने अपना ड्रिल प्रॉपर किया है, तुमने कोई चीट नहीं किया है, तुम प्रॉपर, तुम्हारा कंसिस्टेंसी है, तो तुमको ट्रस्ट में तुमको फियर लगेगा ही नहीं। तुमको फियर कब लगता है पता है, जब तुमने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं किया है, व्हेन यू हैव नॉट डन प्रॉपर ट्रेनिंग, व्हेन यू हैव चीटेड योरसेल्फ, ओके, सो वहाँ पे तुम्हें डर लगेगा। डू योर प्रॉपर ट्रेनिंग, उल्टा तुम और कॉन्फिडेंट होगे, और कॉन्फिडेंट होगा तुम्हारे पता है तुम्हारे पास। और एक सबसे बेस्ट पार्ट होगा कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट होगे, कि नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट, मतलब तुम थोड़ा कॉन्फिडेंट होगे कि यार मैंने मेरा प्रॉपर ड्रिल्स किया और मैं प्रॉपर टाइमिंग का वेट करूँगा और मैं प्रॉपर टाइमिंग में इसको सबमिशन मारूंगा। मेंटली देखो, इसका कोई दवाई नहीं होता है, लाइक यू नो कोई मेडिसिन नहीं होता है डेट मैंने तुमको दे दिया, बोला सुबह दो टाइम और शाम को 2 टाइम, खाने से 2 टाइम पहले, खाने के बाद, ये नहीं होता है। यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम ऑन मैट, यू हैव टू एनालाइज। सी तुम कुछ भी करोगे, इवन अगर तुम छोटा बिजनेस भी करोगे ना, तुम एनालाइज करते हो उससे पहले कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तुम लोग दूसरों के लाइफ में ना 3 चीज़ होता है। फर्स्ट थिंग तुम पंच खा के सीखो, सेकेंड थिंग इज तुम दूसरे को पंच खाते हुए देखते हुए सीखो,
लाइक दूसरे को उसने पंच मारा एंड उसने मिस नहीं किया, देन उसको लगा अरे हाँ तो मुझे नहीं करना। और तीसरा जो सबसे स्मार्ट होता है कि वो देखता है कि हाँ भाई दूसरे ने गलती किया है, इसने ये हुआ, वो एनालाइज करता है। एनालाइज काइंड ऑफ फाइटर होता है, वो हर चीज़ एनालाइज करके जाता है। सो एनालाइज फाइटर, और जितना हो सके मैट में टाइम स्पेंड करो, पेशेंस रहो, फोकस रहो, डेडिकेट रहो, हो जाएगा। एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है पता है, जब तुम्हारा ये तीनों या चारों चीज़ रहता है ना, तुम्हारा एटीट्यूड है ना, तुमको खुद समझ में आएगा कि तुम्हारा एटीट्यूड डिफरेंट हो जाएगा, और तुम्हारा गेम में भी और पॉलिशनेस आएगा और तुम्हें और मज़ा आएगा। दैट्स अमेजिंग, वेरी वेरी एनरिचिंग पॉडकास्ट एपिसोड, बहुत कुछ सीखने को मिला सर। So thank you so much for being with us, and also to all my listeners, if anyone interested in training with him, with Pawan sir, you can contact me, hit me up in my DMs or my email, and you can contact me and I'll connect you with him. And hopefully if not contest in UFC, you can just live a more fitter lifestyle and you can just become a better person. So thank you so much for being here sir. लास्ट में इन एडिशन देखो, या आई स्टिल रिमेंबर लाइक यू टोल्ड नाउ कि यार UFC में फाइट कर सकते। सी टू ऑल द एमेचर्स, मुझे तुमको एक चीज़ बोलना है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली स्लोली वर्क करो। लाइक अभी मुझे भी इतना टाइम हो गया, 2 decades हो गए, ठीक है। अभी मैं खुद UFC में मैं भी स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। सो व्हाट आई टेल यू इज, फर्स्ट थिंग इज कम्पीट मूव। देखो लोगों को क्या लगता है पता है, जो UFC में कम्पीट कर रहे हैं ना, उनको डायरेक्ट UFC फाइट मिला है। नहीं, उन्होंने छोटा लेवल का फाइट्स खेला है, छोटा अपने यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन में फाइट किया, एंड देन उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, देन उनका गेम बढ़ा है, देन पॉलिशनेस आया है, एंड देन उनको सिलेक्ट किया है। देखो क्या होता है पता है, आप है ना मोर ड्रिल करो, मोर स्पारिंग करो और मोर कंपटीशन खेलो, और आप जितना कंपटीशन खेलोगे आपका लेवल बढ़ेगा, और होपफुली आप एक ना तो एक दिन UFC में, नहीं तो 1FC में, नहीं तो बेलाटोर में आप कोई ना कोई गुड प्रमोशन में ज़रूर फाइट करोगे। बेस्ट ऑफ लक टू यू, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आई होप टू सी यू समडे इन UFC एंड बेलाटोर, 1FC, Akhmat, PFL. I hope to see some Indian guys smashing everyone and winning the title belt, and have the positive mindset. Take care.